13.1 exercise, third question we were doing. Two things are given to us in the question. One is the perimeter of the floor of the room, right? That we have written aside. Perimeter of the floor, and that is given to be how much? 250 meters. And then I have told you that as far as floor of the room is concerned, it will be in the shape of rectangle. It will be rectangular. So below the perimeter of the floor of the room, we can write 2 into L plus B, 250. Equation number 1. Perimeter of the rectangle, we have written the formula 2 into L plus B, and this is equal to 250. Right? On the other hand side, he is talking about the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square. So हम लिखेंगे total cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is equal to 15,000. ये वाले स्टेप से जो अगला स्टेप है ना, उसको समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में. दैट इज द की पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, that how we will understand that what is given in this step especially. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 4 वॉल्स को पेंट करने का कॉस्ट दिया हुआ है. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 वॉल्स को पेंट करने का कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए आप मेरे से क्या 2 चीजें पूछोगे? I'm asking you that these 4 walls are to be painted. Find out the total cost. क्या क्या पूछोगे आप? Area of the 4 walls और height क्या? Cost per meter square. 2 ही चीजें होती है. अगर हमें किसी चीज का टोटल कॉस्ट निकालना हो तो एक तो हमें वो चीज चाहिए होती है, एक पर मीटर किस हिसाब से कॉस्ट पे हो रहा है पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है, ये चीजें पता होनी चाहिए. जब हम जिस भी चीज का हमें टोटल कॉस्ट निकालना होता है, उस चीज को कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट. यही होता है. whatever cost we want to find, that thing is multiply the cost per meter square per unit and we get the total cost. यही एक चीज है जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें ध्यान से समझनी है कि इस लाइन को हम कैसे जो है एक्सप्लेन करें. देखें जरा. Total cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is equal to 15,000. अब हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे कि ये टोटल कॉस्ट आता कैसे है, 4 वॉल्स को पेंट करने का कॉस्ट आया कैसे. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट के साथ. किसके साथ? 10 के साथ. देन वी आर गेटिंग द total cost. This is the key point of the solution. जिसको ये स्टेप समझ में आ गया, that will be the, and then it will be okay with the whole solution. That you should know that how to find the total cost of particular. किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालना हो तो हमें सबसे पहले तो वो चीज चाहिए होती है. 4 वॉल्स को पेंटिंग का टोटल कॉस्ट है तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए होता है, मल्टीप्लाई पर यूनिट का जितना कॉस्ट होता है, एंड दैट इज गिवन टू बी 10. From this step, how we are going towards this step, that is the main thing that we have to keep in mind. हाँ जी हरसिमरन कौर, what do you want to ask हरसिमरन? मैम अंशिका ना वेटिंग रूम में, तो वो अंदर उसको ना अंदर. Let me see. I have enabled waiting room, so why you are? ठीक है, it's okay. चलिए, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 15,000. ये स्टेप जो है इट इज वेरी important to understand that how the total cost is described. Total cost of anything is described as that thing multiply the cost per unit. So area of 4 walls को जब per unit के cost के साथ हमने multiply किया
we are getting the total cost that is equal to 15,000. यहाँ से you find area of 4 walls. Area of 4 walls, this is equal to 15,000 over, ये मल्टीप्लाई का 10 इधर आके डिवाइड हो गया. So you are getting it to be area of 4 walls equal to 1500. 4 walls का एरिया हमारे पास 15, हमें याद ही भूल गया हमें फाइंड क्या करना था. एनीबॉडी हु नोज? हमें हाइट फाइंड करनी थी और हमने उसको लेट क्या किया था, एच लेट किया था. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नीचे आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाओ. एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नीचे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स? 2 into L plus B multiply by H. Replace the formula. 2 into L plus B multiply by H equal to 1500. अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की थी, लिख लो पहले इतना. We have formed equation number 1. It is to be used somewhere. That's why we have formed. Where we should use it now? इसमें यहाँ पे रिप्लेस कर दो. इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू है? 2 into L plus B. Using equation number 1, we are replacing 2 into L plus B by the value 250. So place it by 250. So इसको हमने 250 से replace कर दिया और आप लिख दो using equation number 1. First equation को use करते हुए we have replaced the value of 2 into L plus B as 250 here. Right? Now it's very easy to find H. How to find H now? H is equal to 1500 over 250, getting it as 6 meters. This is the answer for the height of the room. So only one thing that you have to keep in mind, that what is the concept of the total cost, that how we find the total cost. किसी भी चीज का total cost. मैं कहती हूँ इस रूम को पॉलिश करना है, total cost निकालो. तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले? एरिया टू बी पॉलिश्ड, एरिया टू बी पॉलिश्ड एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट. मैं कहती हूँ इस रूम को पेंट करना है, टोटल कॉस्ट निकालो. तो आप क्या निकालोगे पहले? एरिया टू बी पेंटेड मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू टोटल कॉस्ट. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया जहां पे दिया हुआ था cost of painting the 4 walls is equal to this. उसके नीचे हमने प्लेस किया that area of the 4 walls into cost per meter square. That is the important thing that we have to keep in our mind. चलिए let us start. भूमिका wants to ask something. हाँ जी भूमिका पूछो फटाफट से अपना क्वेश्चन. मैम मैंने कहना था एक बार स्टार्टिंग वाला बता दो, मैंने लेट एंटर किया. तो स्टार्टिंग में हमने ये लिखा है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर कितना दिया हुआ है? 250. ठीक है, और फ्लोर कैसा है? रेक्टेंगुलर है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. मैंने उसको रिप्लेस कर दिया इक्वल टू 250. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. ठीक है, ओके मैम. चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर ऑन योर स्क्रीन, सो प्लीज. हाँ जी सीमाप्रीत थोड़ा लाउडली बोला करो बेटे अगर कुछ बोलना है तो. मैंने कहा थोड़ा लाउडली बोला करो अगर कुछ बोलना होता है तो पता चलना चाहिए ना क्या बोल रहे हो. ऐसे तो फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाऊंगी ठीक से. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. एक कंटेनर है, हम मार्केट से खरीद के लाए हैं एक कंटेनर, उसमें पेंट है और उस पेंट से कितना एरिया पेंट हो सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर. लिख लो टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड विद paint in container. Total area that can be painted with paint in container is equal to 9.375 meter square. First line पढ़ के whatever we are getting, whatever given we are having, that we have written, that we know that कि हमारे पास इतना एरिया जो है वो पेंट जो हम
खरीद के लेके आए हैं उससे पेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट ही सेज, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर से इस डायमेंशन वाली जो भी मैं लिखूंगी कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। तो अभी हमें नहीं समझ आया, हम पहले जो हमें पता चला वो लिख लें। हमें ब्रिक की डायमेंशन पता लग गई, हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, डायमेंशंस ऑफ brick L B H। L is dimension of brick में L is 22.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, कर लो अगर करना है तो, मैंने एंड में कर देना था, आप पहले भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 100 रादर ना, डिवाइड बाय 100 हम बाद में इकट्ठा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ब्रेड्थ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। These are the dimensions of the brick। वो मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर में, एनी हाउ विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, पहले निकालें। अब ये एक ब्रिक है, क्यूबॉइडल शेप ब्रिक है, सबको पता है, ठीक है। इसको हमने पेंट करना है। अगर हम इसको पेंट करना चाहते हैं तो हम ब्रिक के किसी भी हिस्से के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि हम ब्रिक के फ्रंट वाले पोर्शन को पेंट नहीं करेंगे, क्यों भाई, उसने क्या बिगाड़ा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि टॉप वाले को रहने दो, हम ये भी नहीं कह सकते कि बॉटम वाले को रहने दो। एवरी फेस ऑफ द ब्रिक इज टू बी पेंटेड, हर फेस को हमें पेंट करना है। तो इसका मतलब जो हमें इसका आउटर एरिया पूरा नजर आ रहा है, दैट बिकम्स द इट्स व्हाट, टोटल सरफेस एरिया। सो एरिया टू बी पेंटेड फॉर वन ब्रिक, राइट डाउन, एरिया टू बी पेंटेड फॉर वन ब्रिक, area to be painted for one brick is equal to total surface area। ये बच्चे गलत कर देते हैं, वो कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कर लो, चारों साइड से ब्रिक को पेंट कर दो, ऊपर से और नीचे से रहने दो। नहीं, ब्रिक इज टू बी पेंटेड फ्रॉम ऑल द फेसेस until or unless it is not said that the upper or lower portion have to be removed or have to be left, then it means we have to paint all the faces, ठीक है। So ये हुआ area to be painted is equal to total surface area। Write down the formula। This is 2 into LB BH HL। Replacing the value, this is 2 22.5 B10 B into H into L। When you will replace it, I'm just writing the calculation that I have done earlier on the notes that I have to send you। So ये आपके पास calculation 168.75, this is 2 into 468.75 and that will be 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपके पास आ गया एक ब्रिक को पेंट करने का क्या एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, अभी तो हमारे पास एक ब्रिक का आया, अभी हम देखते हैं क्या करेंगे। वन ब्रिक एरिया इज कमिंग लाइक दिस, दिस इज द एरिया ऑफ द वन ब्रिक एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। आप ऐसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं जो पूरा कंटेनर वाला है, क्योंकि मेरे को डिवाइड करना मुश्किल लगता है, मुझे मल्टीप्लाई करना आसान लगता है। तो मैं इसको मीटर वाले को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ। 9.375 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। कितनी बार, 2 बार करेंगे क्योंकि मीटर स्क्वायर है। आप इसको कर दो सेंटीमीटर, वैसे तो एक ही, चलो एनी हाउ, इंटू 100 इंटू 100, 4 zeros आ जाएंगी। हाँ जी,
का नीचे 3 0, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ही करनी है। 4 zeros आ गई, दिस विल बी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, जो पहले मीटर स्क्वायर में हमें दिया हुआ था ना उसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ना था, दैट आई डोंट लाइक, मुझे मल्टीप्लाई ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई पहले वाले को चेंज कर दिया। ठीक होगी यहाँ तक बात? सो दिस इज 9.375, this is centimeter square and this is also centimeter square. The whole question is turned into one unit and that is centimeter. तो ये है एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया जिसे हमें पेंट करना है। इतना एरिया, एक इतना पेंट, इसका मतलब एक ब्रिक के लिए हमें चाहिए, और टोटल पेंट हमारे पास इतना है। क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना क्या है, भूल गया कि क्या क्वेश्चन क्या था भाई, याद है किसी को? How many bricks can be painted with the paint that is available in the container? कंटेनर में जितना पेंट है उसकी हेल्प से कितनी ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है? This was the question. चलिए let us continue. अब जब भी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे क्वेश्चन होगा हाउ मेनी ऑफ दिस थिंग्स कुड बी डन विद दिस, जहां पे भी हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे हमें एक चीज को दूसरी चीज के साथ डिवाइड करना होता है। कभी हमें किसी वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, कभी हमें किसी सरफेस एरिया को किसी सरफेस एरिया से डिवाइड करना होगा, पर हमेशा डिवाइड करते हुए हमने एक चीज याद रखनी है, बड़ी चीज ऊपर, छोटी चीज नीचे रखेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, that whenever we have to do the division for certain areas or volumes, bigger thing upper side and lower thing lower side. तो अब मुझे ये बताओ, जो पेंट कंटेनर में अवेलेबल है और जो पेंट एक ब्रिक पे पेंट किया जाना है, which will be having the more quantity? कंटेनर वाले की में ज्यादा पेंट की क्वांटिटी होगी, या फिर जो ब्रिक वाला पेंट आया, ब्रिक पे जितना पेंट होना है वो ज्यादा? कंटेनर में नेचुरली है, कंटेनर हम मार्केट से लेके आए हैं, मैक्सिमम ब्रिक्स को पेंट करना है हमने, तो उसी में ज्यादा क्वांटिटी होगी। वन ब्रिक की पेंट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ऐसे भी दिख ही रहा है, इसका मतलब ये चीज इससे बड़ी है। पहली बात तो ये, अगर आपको पेपर में, अभी मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी बताऊंगी, ये ट्रिक होता है कि जब भी हमें किसी चीज का नंबर निकालना हो, दोनों में से जो बड़ी चीज होती है उसको ऊपर और छोटी चीज को नीचे रख के डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाता है। ये तो एक ट्रिक हो गया ना, बच्चे कई सीधा कराते हैं, नंबर ऑफ द ब्रिक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। बट अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज चले, सपोज हमने ब्रिक्स का आंसर निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो हम ये सपोज, ये अगर छोड़ भी दोगे जैसे मैंने पहले बोला तब भी ठीक है, बट कॉन्सेप्ट से भी वही चीज आएगी। लेट अस सपोज, लेट total number of bricks that are to be painted be n, small n, x कुछ भी कह दो आप, anything you can say, let us say it to be small n। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पेंट n ब्रिक्स पे लगे, हम कह रहे हैं कि इससे n ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं, इसका मतलब ये हुआ जितना सरफेस एरिया n ब्रिक्स का होगा वो किसके इक्वल होगा? कंटेनर वाले पेंट के इक्वल। अगर हम कह रहे हैं कि n ब्रिक्स इससे पेंट हो सकती हैं, तो n ब्रिक्स का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल सरफेस एरिया दैट दी टोटल पेंट दैट दी कंटेनर इज हैविंग। सो इसका मतलब n इंटू n ब्रिक्स का एरिया कैसे आएगा? एक ब्रिक का कितना है? 9.375, n इंटू 9.375 इक्वल टू टोटल कितना है? 93750। और इनका इक्वल आने का रीजन ये है, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है कि n ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं गिवन पेंट से, तो n ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द पेंट दैट इज अवेलेबल इन द कंटेनर, राइट? So n is equal to 93750 divided by 9.375 and this will be 100 bricks। अब देखो वही बात हुई जो मैंने आपको बताई थी। मैंने क्या कहा? बड़ी चीज को ऊपर रखो, छोटी चीज को नीचे रखो, डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर सीधा भी आप ये वाला स्टेप भी कर दोगे ना,
Therefore, number of bricks is equal to bigger amount in the numerator and the smaller amount in the denominator division, then also it will be okay. But वो कहाँ से आया concept भी हमें पता होना चाहिए. ये concept होता है कि जितनी चीजों के लिए material required है उतनी चीजों का total surface area will be equal to the total material. और वहां से n की value, this is the total quantity divided by the quantity on the left side, you are getting to it to be 100. So how many bricks are needed? Will be painted. How many bricks will be painted? 100. दोनों चीज तरह से ठीक है. If you are skipping the step and you are writing it directly, that number of bricks is equal to the total paint over the paint needed for the one brick, that is also okay. Which one you like? Directly? ये करके करना है. So it's up to you. Otherwise concept होता है total paint over the paint needed for one brick. बड़ी चीज हमेशा छोटी चीज से डिवाइड हो जाएगी जब भी हमें नंबर ऑफ थिंग्स कुछ निकालनी होगी. चलिए, ये वॉल्यूम में भी ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगी आपको. चलो, जैसे आपके पास कुछ हो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको एक बेसन का, आपको कह लो कि एक मटेरियल दिया गया, बेसन का आपको मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, और आपको बोला गया उसमें से लड्डू बनाओ. आपने उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बनाते जाना है. कितने लड्डू बनेंगे? तो इसके लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द बेसन ओवर वॉल्यूम ऑफ द वन लड्डू, यानी कि बड़ी चीज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर चीज. हमेशा जब भी किसी चीज का नंबर निकालना है, बिगर अमाउंट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द वन थिंग, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ द नंबर ऑफ द थिंग्स. आएंगे ऐसे क्वेश्चंस और भी. चलिए भी, hope I am clear to this with this question to all of you. Am I clear? Vivan, what are you doing? Calculations? हो गया आपका ये क्वेश्चन? चलिए भी, let us start with question number 5. I am leaving to you. एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो, बताओ किसका ज्यादा है. ये आप अपने आप करोगे. दिस आई एम लीविंग टू यू. हम शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज. 6th question of the exercise we are going to start with. अभी तक हमने फॉर्मूलाज वैसे कितने किए इस चैप्टर में? 8 फॉर्मूलाज किए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द ऑल एजेस, लेंथ ऑफ द डायगोनल, एंड सेम फॉर द क्यूब. 4 + 4 8 क्वेश्चन हमने फॉर्मूलाज किए हैं अभी तक. चलिए, 6th, which chapter is going on? सरफेस एरिया वॉल्यूम. कभी कभी चैप्टर करते करते हमें चैप्टर का नेम ही याद भूल जाता है, इसलिए कभी कभी रिकॉल कर लेना चाहिए नेम. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. यस, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड अप इंटायरली ऑफ द ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग द बेस एज वेल. सो बेस को भी इसने बोला इंक्लूड किया. जब इंडोर हाउस जो बना रहा है तो उसकी टॉप तो होगी, बिना टॉप के क्या उसको बनाएगा. सो टॉप इज देयर, दिस इज ऑब्वियस, बट बेस इज देयर और नॉट. ही इज सेइंग दैट यस, बेस इज इंक्लूडेड. ही सेज होल्ड टुगेदर विद द टेप. जैसे चारों तरफ पे हमने ग्लास लगा दिया, इधर उधर इधर नीचे सारी तरफ से, और जो कोने हैं उन पे हमने टेपिंग कर दी ताकि उनको हम टिका सकें. किसी तरह से उनको जोड़ना भी तो था ना, दे हैव टू बी फिक्स्ड, and that fixing has been done with the tape. चलिए, he says it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. तो आप सीधा पहले जो पता चल गया ना उसको बून समझते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं अपने पास. So length is equal to 30, breadth 25 and height h. हाँ जी, ग्लास का बना हुआ है, मतलब हम अंदर से ऐसे बाहर देख भी सकते हैं, सब नजर आएगा अंदर. हाँ, ग्लास मतलब जो हाउस बना हुआ है इंडोर हाउस, उसकी क्यूबॉइडल शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ मतलब ग्लास की. ठीक है, जो रूम बना हुआ है उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है. ओके, चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास जो कि इस पे लगाया गया है, इसको बनाने के लिए कितना एरिया होगा उस ग्लास का. दैट मीन्स हाउ मच ग्लास इज नीडेड, हाउ मच ग्लास इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस हाउस.
चलिए जस्ट टू सी द कैलकुलेशन आई हैव टू। तो इसको बनाने के लिए हमने टोटल कितना ग्लास लगाया? तो नेचुरली ये जो हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके सारे फेसेस हैं हमारे पास, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक टॉप बॉटम, एवरी फेस इज देयर। तो इफ उसने बोला इंक्लूडिंग बेस, सी द ब्रैकेट, ही सेज इंक्लूडिंग बेस। अगर यहाँ ये ना लिखा होता तो शायद हम कंफ्यूजन में आ सकते थे कि बेस को इंक्लूड करना है कि नहीं, बट ही इज सेइंग दैट बेस इज टू बी इंक्लूडेड, सो अकॉर्डिंगली वी विल डू द कैलकुलेशंस। तो हम लिखेंगे ग्लास नीडेड, glass needed for the house is equal to total surface area. This time we will take total surface area because each face is to be included, and we all know the formula for the total surface area, and that is 2 into LB plus BH plus HL. 2 into LB plus BH plus HL. Let us replace the values. This is 2 L into B, B into H, H into L, and further equal to 750, 625 plus 750. This is 2 into 2125, and that is equal to 425 centimeter square. This much glass is needed to construct the house, greenhouse. इतना ग्लास जो है वो रिक्वायर्ड है ग्रीन हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. This much glass is needed. Done. One more part is there of the question. Let us read out the statement of that part 2. How much of the tape, see, how much of the tape is needed for all the 12 edges? So one formula I have told you at that time, I was giving you the hint that these kind of questions and these formulas could be used in the questions like this that I have just read out. What is the question? What is the amount of, what is the length of the tape which is needed for 12 edges? उन 12 edges पे टेपिंग करने के लिए कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी? इस क्वेश्चन का आंसर देगी विनीत रूप. Length of all edges will give us the quantity of the tape. So write down quantity of the tape needed for taping. Quantity of the tape needed for taping is equal to length of all the edges. Length of all the edges. And that is 4 into L plus B plus H. Formula have been used that we have derived earlier. We have learned this earlier, so that we are using 4 into L plus B plus H. And that is equal to 4 into 30 plus 25 plus 25. 30 plus 50. 4 into 80. 320 centimeter square. So 320 centimeter square is the answer for the taping. Tape, जितने टेप हमें चाहिए इसको, इसके जो फेसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, यानी कि टेपिंग करने के लिए, that is 320 centimeter square. ठीक है बेटे, क्लियर? दीक्षा, हाँ जी. Oh, sorry. Unit will be centimeter because three things are added, not multiply. Centimeter added to centimeter will give the answer in centimeter. Good, Vivan. विवान ने बताया, घर बैठे दर्शक सुन सकते हैं कि ये सेंटीमीटर आएगा. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में.
9th AB को बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा यहाँ पे 60 से ऊपर स्ट्रेंथ नहीं जाती, जबकि CD में आज 88 स्टूडेंट्स थे। 9th AB को ना थोड़ा ज़्यादा हुआ पड़ा है कि हम तो अपने आप ही पढ़ लेंगे। बच्चे प्लीज़ अटेंड योर लेक्चर्स रेगुलरली, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन अब थोड़ा सा चलो इंटरेस्टिंग है, देख चलें जरा शुरू करते हैं इसको। शांति स्वीट स्टॉल, स्वीट स्टॉल की बात हो रही है, नाम क्या है स्वीट स्टॉल का? शांति स्वीट स्टॉल। was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। शांति स्वीट स्टॉल की बड़ी भी सेल हो रही है, फिर उनको बॉक्सेस बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो फिर उन्होंने अपने बॉक्सेस जो हैं कार्डबोर्ड के ऑर्डर किए, क्योंकि मिठाई अगर बेचनी है तो पैक करके बेचोगे ना, हाथ पे थोड़ा रख दोगे लोगों के। चलिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए उन्होंने ऑर्डर किया जिसमें कि पैकिंग करनी है उन्होंने अपनी स्वीट्स। चलिए 2 sizes of boxes are required। अब इस पैकिंग के लिए 2 sizes के बॉक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। Some of the boxes are bigger and some of the boxes are smaller। कुछ बड़े बॉक्स चाहिए उनको ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए, एंड सम बॉक्स आर स्मॉलर टू सेल द लेसर क्वांटिटी। देखिए जरा क्या हिसाब किताब के साथ वो चल रहे हैं। बिगर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स। कुछ बॉक्सेस बिगर बनवाने हैं उन्होंने और कुछ बॉक्सेस स्मॉलर बनाने हैं। देखें जरा बिगर बॉक्स की जो डायमेंशंस हैं दैट आर लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, breadth is equal to 20 centimeter and moreover height is equal to 5 centimeter. These are the dimensions of the bigger box. So what are the dimension of the smaller box? Let us write and just keep one thing in mind, as we have used already small l, small b, small h. So let us take it to be capital L, capital B and capital H, just to make a little difference. So this is 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter। जितना को हमें अभी तक समझ आया कि 2 तरह के बॉक्सेस वो बनवा रहे हैं, उनकी डायमेंशंस हमें दी हुई है, दैट वी हैव नोटेड डाउन। चलिए आगे। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। चलो भी जितनी भी इसके ऊपर ओवरलैपिंग होनी है, जो बॉक्स बन गए, बॉक्सेस के ऊपर उन्होंने कुछ ओवरलैप किया, उसकी डिजाइनिंग वगैरह की, उसके ऊपर जो है पेपर वगैरह लगाया, सारी ओवरलैपिंग के लिए भी तो कुछ एरिया चाहिए होगा ना, एंड दैट इज हाउ मच? 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जितना टोटल सरफेस एरिया होगा बॉक्स का, उसका 5% और लगेगा किस चीज के लिए? ओवरलैपिंग के लिए। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि मैं आपको अपने पर्स का ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये पर्स पहले बना होगा, उसके ऊपर फिर उन्होंने रेड कलर का ऐसे लगाया होगा, पहले तो इसका ढांचा बना होगा, फिर इसकी ओवरलैपिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए रेड रूट कुछ लगवा दिया उसके ऊपर, तो ओवरलैपिंग के लिए भी तो कुछ एरिया लगा ना, दैट इज ठीक है ना। अर्शीन कहती मैम ने तो हमें अपना पर्स ही दिखाना था जान के, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए 5% एरिया जो है वो चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ, इतना हमें अभी तक समझ आया, चलो बाकी की बातें बाद में। कोस्ट की बात कर रहा है, कोस्ट को हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कितना कार्डबोर्ड जो है, जो कंपनी जिसको ये ऑर्डर मिला है उसको कितना कार्डबोर्ड अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉस्ट की बात करेगा ना। पहले कंपनी कहती है कि हमें पहले हिसाब किताब लगाने दो, हम कहते हैं हमें एस्टिमेट सा दे दो, वो कहते हैं नहीं शाम को आइए तो शाम को आपको बताएंगे कितना कार्डबोर्ड हमारा लगेगा, उस हिसाब से। कंपनी अब हिसाब किताब करने लगी, वो चले गए अपना ऑर्डर देके। हाँ, कंपनी अब कैसे हिसाब किताब करेगी? तो टोटल सरफेस एरिया, अच्छा ये भी तो देख ले कितने बॉक्सेस चाहिए। 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी कि 250 बॉक्स बिगर और 250 स्मॉलर। 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड
इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द शांति स्वीट स्टॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कार्डबोर्ड निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि इस एक बड़े बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, इस एक छोटे बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, और उसके बाद ऐसे 250 बॉक्सेस का कितना कार्डबोर्ड होगा और ऐसे 250 बॉक्सेस का कितना कार्डबोर्ड होगा, फिर उनको ऐड कर दिया जाएगा। अभी भी बात खत्म नहीं होती, कार्डबोर्ड अभी जितना चाहिए वो आया नहीं है, 5% और चाहिए। किस चीज के लिए? ओवरलैपिंग। जो टोटल होगा उसका 5% ओवरलैपिंग का कार्डबोर्ड होगा, सारा कार्डबोर्ड ऐड कर दिया जाएगा। दैट मच कार्डबोर्ड विल बी नीडेड फॉर दी कंपनी टू मेक दीज बॉक्सेस। बात समझ आई? एक बॉक्स के लिए जितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा वो क्या होगा? बिल्कुल टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो मिठाई रखेंगे तो नीचे गिर जाएगी, और अगर ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो कीड़ियां आ जाएंगी, तो दोनों चीजें चाहिए होगी। तो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर वन बॉक्स क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। आप लिखो कार्डबोर्ड needed for one box equal to total surface area, that is 2 into LB plus BH plus HL, replacing the value 2 into 25 into plus 20 plus 20 into 5 plus H into L 5 into 25। मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिखने लगी हूँ कैलकुलेशन का। दिस विल बी 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने आप करना कैलकुलेशन, ये दिख नहीं रहा बच्चों को यहाँ पे। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी भी नहीं दिखा, स्क्वायर आएगा। अभी भी नहीं दिख रहा। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बॉक्स का। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम 250 का भी निकाल लो। नहीं, अभी नहीं, मैंने निकालना, पहले मैं स्मॉलर बॉक्स का निकालना। कार्डबोर्ड नीडेड फॉर वन बॉक्स टू कैपिटल LB प्लस कैपिटल BH प्लस कैपिटल HL। ठीक है, रिप्लेसिंग द वैल्यूज, this is 2 into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15, and when you will do the calculation it will be 630। चलिए भाई, it's time for the fourth period as the bell of the school has told and it's saying, so we'll meet tomorrow. Take care.